आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। हम इस जंग में एक साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। इसके बाद गुजारिश करना चाहूँगा, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। इज्जत माफ जनाब आज की इस कॉन्फ्रेंस के चीफ गेस्ट जनाब श्री कान बाला साहब सुसी, जनाब ADC साहब, जनाब श्री राम SSP कारगिल साहब, डिस्ट्रिक्ट के बाकी अफसरान और यहाँ पे बाकी गेस्ट मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों से आए हुए असातिज़े कराम व तालिब इल्म और यूथ एक्शन कमेटी के मेंबरान, अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि आप सबको बखूबी मालूम है कि आज बैनुल-अक़वामी सतह पर इस दिन को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के तौर पर मनाया जाता है और इस दिन को मद्देनजर रखते हुए आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यूथ एक्शन कमेटी कारगिल की ताउन से हर साल की तरह इस साल भी मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद यूनाइटेड नेशन ने 31 अक्टूबर 2003 को UN जनरल असेंबली में एक कन्वेंशन के जरिए बताया है कि इसका मकसद दुनिया में करप्शन को रोकना और इसके मुताल्लिक लोगों को आगाही देना है। इस सिलसिले को यूथ एक्शन कमेटी कारगिल लद्दाख पिछले तकरीबन 10 सालों से जारी रखा हुआ है और मकसद भी कमेटी का यही है कि लोगों को आगाही मिले। इस बिदअत को कम करने के लिए यूथ एक्शन कमेटी मुख्तलिफ जगहों पर अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए और ख़ासकर तालिब इल्मों को शिरकत करने का मौका फराहम करते हैं ताकि आने वाला नस्ल इस करप्शन जैसे बिदअत को ख़त्म करने के लिए पहले से तैयार रहे और हमारा माशरा पाक और आला माशरा बन सके। मैं समझता हूँ कि इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन या कोई कमेटी काफ़ी नहीं है, बल्कि माशरे में हर फर्द को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। करप्शन को ख़त्म करने के लिए नौजवानों का बहुत अहम रोल है और अगर नौजवान इस सिलसिले में अपना रोल निभाएं तो हमारा प्यारा भारत करप्शन से पाक एक अजीम मुल्क बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद fellow citizens, I am Mohammed Tawheed, a student from GDC Kargil, and today we all gather here on the International Day that is against corruption. We are here to gather not just the persistent challenge of corruption, but to renew our collective commitment to confront and eradicate this menace from the roots of our society. Corruption is not just an economic issue, it is a moral, it is a social, it is a cultural problem that undermines trust. It destabilizes governance and impedes our national progress. In India, a nation which is rich with its history, diversity and potential, the shadow of corruption looms really large. From the highest echelons of governance to grassroots level, it hampers our collective aspirations, distorts development, and keeps millions trapped in the cycles of poverty and inequality. Whether in public administration, businesses, transactions, or education, corruption steals not just money, it steals opportunities. It steals justice and dignity from the people. But what can we do about it? In the face of such a pervasive issue, it can feel like an overwhelming task. Yet history has shown that change is not only possible, it is achievable. Consider the rise of Right to Information Act, RTI, or the massive civil movement that was held, for example, Anna Hazare-led movement. It brought together millions of people and it held accountable the authorities and challenged this entrance system of corruption. We must also demand stronger institutions and laws that are capable of holding corrupt individuals accountable. The current frameworks, while they are commendable, often remain ineffective due to loopholes and a lack of enforcement. Stronger laws, combined with a fairness and independent judiciary,
are necessary to create an environment where corruption becomes not only morally unacceptable, but also legally citizen, regardless of their background or status, can live with dignity and opportunity. Thank you, everyone. बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम वक्त का खास ध्यान रखना। अभी से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज आप अपनी स्पीच शुरू करें। सबसे पहले हमें पता है सर, आज 9 दिसंबर हम लोग को पता है कि हम लोग एंटी करप्शन डे हम लोग हर साल मनाते हैं। तो हम सभी को पता है सर कि एंटी करप्शन डे क्या होता है, कि जो मुल्क में हमें पता है पैसा देना, ठीक है, तो हमें पता है कि क्या करना है। हम सभी को ये सोचना है कि अब से हमको उस करप्शन के खिलाफ हमको लड़ना है, ठीक है। बल्कि ये करप्शन को हम लोग को दूर करने के लिए हमारा कोई यूटी एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करेगा, बल्कि हम खुद को जानना है कि हमें इस करप्शन से कैसे दूर रहना है। सबसे बड़ी चीज़ देख सकते हैं आप लोग सभी अपने घर में देखते हैं कि सोचते हैं हाँ यार अपने पेरेंट्स है वो करप्शन दे के हमें निकाल देगा। फिर हम स्टूडेंट को भी थोड़ा माइंड होना चाहिए कि सोचो यार कि इस चीज़ से स्टूडेंट की लाइफ पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। सोचेंगे हाँ यार हमारे पेरेंट्स तो क्या है इस चीज़ पे हमारे ऊपर पैसे छाप देंगे, हम निकल जाएंगे इजीली। सो हम सभी को पता है कि इस चीज़ को रोकने के लिए हम खुद को काम करना चाहिए, ना कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये है कि आप लोगों को अवेयरनेस करना कि इन चीज़ों से दूर रहना है, बल्कि हमें अपने पेरेंट्स को। Guest and dear audience, I am Jabin Fatima on behalf of Government Girls Higher Secondary School, Kargil, and I am here to speak on the topic corruption. Every year on December 9, an International Anti-Corruption Day raises public awareness for anti-corruption. It also encourages the public to work on innovative solutions and at the winning the battle against corruption. By corruption, we mean that any dishonest or immoral behavior or activity that result in gain of some powerful and organization or people. Thus, corruption results in loss of weaker section of the society or organization. There are different forms of corruption. It includes extortion, nepotism, bribery, patronage, etc. Corruption may lead to human and drug trafficking, money laundering, police brutality, repression of opponent, etc. Today, as we gather to observe the Anti-Corruption Day, it is crucial to reflect on the impact of corruption and collective responsibility we bear in combating this menace. Corruption is like a shadow that hinders the progress of any society. It takes away resource meant for the common good and undermines the trust citizens place in their institution. We must understand that the problem of corruption is not just a problem for government, but a challenge that affects each one of us. So the question is that, how to tackle corruption? Of course, to tackle corruption, we must promote transparency, accountability, and ethical behavior at all levels. It starts with our daily action, from saying no to bribery, holding ourselves accountable for our responsibilities, educating ourselves and others about the consequences of corruption is a key to building a society that values honesty and integrity. As we mark this anti-corruption, let us pledge to fight against corruption in our society where fairness, justice, and equality prevail. In conclusion, let us remember that the fight against corruption is not just a one-time effort, but an ongoing commitment. Each small act of integrity contributes to a brighter and more just future. Together, let us stand united against corruption and work toward a world where honesty triumphs over deceit and fairness prevail over exploitation. Sustained commitment to anti-corruption initiative is vital for building fair and just society. I would like to end my say with the quote, संभव है सब कुछ, असंभव कुछ नहीं, संभव है सब कुछ, असंभव कुछ नहीं, कर हौसले बुलंद,
दूर कुछ भी नहीं. Thank you so much. Have a wonderful day ahead. इसके बाद सुरवली हायर सेकेंडरी स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाली ज़ैनब खातून से गुजारिश करना चाहूँगी कि वो अपनी टॉपिक पेश करें प्लीज़. I am Zainab Khatun, student of Sur Valley Public Higher Secondary School, representing a speech on today's occasion. Today, as we observe International Anti-Corruption Day, it is essential to reflect on the importance of integrity and the need to eliminate corruption in our society. Corruption is a global issue impacting countries, economies, and individuals in countless ways. It is defined as the abuse of entrusted power for personal gain, and its consequences are devastating. The United Nations designated December 9 as Anti-Corruption Day to raise awareness about this issue and promote efforts to combat it. Corruption erodes trust, undermines democracy, and hampers development. It diverts resources away from the most vulnerable and leads to inequality, injustice, and poverty. Globally, corruption costs an estimated $3.6 trillion annually, according to the United Nations. In developing countries like ours, it is one of the main obstacles to growth. Funds meant for education, healthcare, and infrastructure often disappear into the pockets of a few. As a result, the poor remain poor and progress slows down. But let us not forget, corruption does not only exist in high places. It also lurks in everyday activities, paying bribes for shortcuts, cheating in exams, or evading responsibilities. These seemingly small actions contribute to a larger culture of dishonesty. As students, our role in combating corruption is crucial. What can we do? First, cultivate honesty. Start with yourself. Be truthful and fair in your actions. Spread awareness. Talk about the harms caused by corruption and encourage others to reject it. Refuse bribes. Say no to any form of unethical behavior, even if it's tempting. Report corruption. Speak up when you witness unfair practices. Many organizations and helplines allow you to report corruption anonymously. Mahatma Gandhi once said, "Non-violence and truth will never be destroyed." These values remind us that integrity has the power to transform societies. On this Anti-Corruption Day, let's pledge to take a stand. Let us reject this fight for a better world. It is a fight for humanity's dignity and hope. Now, I would like to end my topic with some quotes of Prophet Muhammad, peace be upon him. रसूल अकरम ने इन लोगों पर लानत फरमाई है जिनके इल्म की ज़रूरत है और जो उसके बदले में रिश्वत तलब करते हैं. और किताब बहारुल अनवार में भी पैगंबर से रिवायत है कि आपने फरमाया, खुदा रिश्वत लेने वाले और रिश्वत देने वाले और उनमें से दलाल पर लानत करे. रिश्वत लेने से परहेज करो क्योंकि ये खालिस कुफ्र है और रिश्वत लेने वाले खुदा की रहमत से दूर है. May God keep us all away from such sins and guide us on the right path. Thank you. हकीमा बानो जी तशरीफ रखने हैं तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा प्लीज़. Balakon, Suzy, officers and dear colleagues, Assalamu alaikum and good morning everyone. My name is Hakima Banu, student from Kemshiri High School Point. I am honored and privileged to be a part of this function and would like to take a few minutes of yours to share a few things on the said occasion. अपनी ये आदत की मांगे सबसे हम यूं बेधड़क और देने वाला रिश्वत नाम से शर्माए हैं. मेरे टेबल पर वो मेरा हिस्सा रखता जाए हैं. मेरी टेबल पर वो मेरा हिस्सा रखता जाए हैं. हो गया रिश्वत का आदि घर कोई अफसर कहीं. आलमियों में रिश्वतखोरी के खिलाफ हर साल आज के दिन यानी 9 दिसंबर को दुनिया भर में मिलूम और हमारे मुल्क हिंदुस्तान बिलखुसूस बड़ी ज़ौक़ व शौक़ से इस थोड़ा पीछे आलमियों में रिश्वतखोरी के खिलाफ हर साल
के दिन यानी 9 दिसंबर को दुनिया भर में बिलूम और हमारे मुल्क हिंदुस्तान बिलखुसूस बड़ी ज़ौक़ व शौक़ से इस दिन को मनाने का रिवाज रखता है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। इस दिन को अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के एक खुसूसी करारदाद के मुताबिक मनाया जाता है। What is corruption? करप्शन क्या है? किसे कहते हैं करप्शन? चलिए, यूनाइटेड नेशन के मुताबिक रिश्वतखोरी एक नासूर है जो किसी भी समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, यूं उस समाज का अखलाकी और समाजी इक़्तिदार को पामाल कर देता है। जैसे हमारे यहाँ कारगिल के इस्तिलाह में ज़ुक़ कहा जाता है। ज़ुक़ तो आप लोग समझ रहे होंगे, जुगाड़। हमेशा हर चीज़ में हम कहते हैं ना ज़ुक़ चुपसेंगे, वो जुगाड़ तो करो थोड़ा सा, यही ज़ुक़। जैसे हमारे यहाँ कारगिल के इस्तिलाह में ज़ुक़ कहा जाता है। हम अपनी आंखें बंद और दिल पर हाथ रख के इस ज़ुक़ को महसूस करें तो कहीं न कहीं हम भी इसी ज़ुक़ के ज़ुमरे में शामिल हैं। हमारे समाज में बिलखुसूस मैं इस प्रोग्राम में शामिल तमाम ख़वातीन व हज़रात से सवाल करती हूँ, क्या हम हक़ ज़हमत के नाम से मसरूफ़ इस सिस्टम से ख़ुद को नाआशना समझते हैं, जबकि सुनने में आता है कि हमारे सरकारी दफ्तर में ज़ुक़ और हक़ ज़हमत का दौर दौरा है। जैसे इक़्तिदारी तौर पर समाज में नाहमूर और नाबराबरी का दौर चल रहा है। आलमी सतह पर अगर हम रिश्वतखोरी या करप्टिव प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो बहुत सारे रिपोर्ट्स पेश नज़र है, जिनमें से एक मशहूर व मअरूफ इरादा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने साल 2023 के लिए एक रिपोर्ट शायर किया है, जिनमें हमारे मुल्क हिंदुस्तान 96 सतह पर होने का एहतराफ किया है, जिनके बनिस्बत एशिया के दूसरे और हमारे हमसाये ममालिक में पाकिस्तान और नेपाल सिलसिलावार 123 और 108 के दर्जे पर बताया गया है, जबकि दीमक और फिनलैंड जो कि यूरोपीय ममालिक में नंबर 1 और 2 पर होने का एहसास करती है। ये एक खुशी की बात है, ये एक खुश आमीन बात है कि लद्दाख एक यूनाइटेड नेशन बनने के बाद यहाँ भी बाज़ाब्ता एक इरादा बनाम एंटी करप्शन ब्यूरो लद्दाख के नाम से फ़ाल है। ताहम अभी तक इस इरादे की नज़र से इस मामले में कोई हतमी रिपोर्ट शायर नहीं हुआ है, जबकि सोशल मीडिया के ज़रिए से चंद रिश्वत खिलाफ मीम चलने वाले हज़रात या सिविल एक्टिविस्ट के रिपोर्ट सामने आते हैं। अगर इन रिपोर्ट्स में कुछ हकीकत है तो इन पर छानबीन करके एक फ्री करप्शन सोसाइटी की तामीर की जा सकती है और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हर एक आम शहरी को ये तक़वियत है कि वो किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंटेबल बना सकता है और किसी भी तरह के करप्शन टेंडेंसीज को रोक भी सकते हैं। और आखिर में मैं समझती हूँ कि लद्दाख जैसे एक छोटी सी बाउंड्री में अगर हम सब चाहे तो करप्शन जैसी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये एक लद्दाख के लिए एक आज़ाद से कम नहीं होगी जिस दिन करप्शन फ्री लद्दाख के ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जाए। शेख गुलाम हुसैन सहर के इस शेर के साथ अपनी तकरीर को अख्तिताम करती हूँ कि कब तलक देखेगी ये दुनिया सैराब जिंदगी, पी के किसने कह नहीं की शराब जिंदगी, जिंदगी मुजरिम बनाकर जो पेश करे वो मौत की सूरत में बहकेगा अक़ाब जिंदगी। जब हयात जवदानी मौत के परे में है, जब हयात जवदानी मौत के परे में है, फिर सहर समझ को ये प्यारा क्यों ये ख्वाब जिंदगी। शुक्रिया। दोनों से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद इब्राहिम साहब से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ आज के टॉपिक। Teachers, dear friends, honorable guests. Today I, Muhammad Ibrahim from Government High School Baru Kargil, stand before you to speak about an important issue, corruption. On this special occasion of World Anti-Corruption Day. Corruption is like a disease in society. It weakens our system, steals opportunities and stops progress. It occurs when people in power misuse their position for personal gain. This could be taking bribes, cheating others, or breaking rules to benefit themselves. Corruption harms us all. For example, if money meant for building schools, hospital, road is stolen, it affects everyone.
especially the poor. It creates inequality, injustice, and slows down the growth of our country. But we must remember, corruption does not only happen in high offices, it can happen in small acts too. Like cheating in exams, skipping rules, or not speaking up when we see something wrong. Even small corrupt acts can grow into bigger problems. So how can we fight corruption? First, by being honest in our lives. Second, by spreading awareness about its dangers. And third, by supporting laws and systems that stop corruption. As young students, we are the future of this nation. We must stand for truth, justice, and fairness. Even in small things like refusing to cheat in exam or speaking up for what's right, we are contributing to an anti-corruption mindset. Let us pledge today to never support corruption in any form. Together we can build a society where honesty and integrity are valued, where everyone gets a fair chance, and where our nation moves forward. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आखिर में डिजिटल कंप्यूटर सेंटर करगिल से ताल्लुक़ रखने वाले बशारत अली साहब से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने टॉपिक शुरू करें। यूथ एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट और उनके साथी मुख्तलिफ स्कूल से आए हुए स्टूडेंट्स, सबको जुमे अस्सलाम वालेकुम। हम सब जानते हैं कि पिछले कई सालों से हम ये दिन मनाते आ रहे हैं, बल्कि ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पे भी वर्ल्ड वाइड ये मनाया जा रहा है आज। तो हम सब जानते हैं कि रिश्वत क्या है, एंटी करप्शन डे क्यों मनाया जाता है। हर कोई इंसान, चाहे वो ऑफिसर हो, प्राइवेट कोई बिजनेस करने वाला हो, कोई तालिब इल्म हो, कोई भी हमारा नागरिक है, हर एक पे फ़र्ज़ है कि वो अपना दियानतदारी, जो भी काम करना हो दियानतदारी से करें, अपने मनसब को सही तरीके से इस्तेमाल करें। जो पावर है, अथॉरिटी है, जिस मनसब पे वो है, उस मनसब पे सही तरीके से अगर वो काम करें, एक एक फ़र्क अगर हम जानें कि मेरा काम क्या है और मैं क्या सही तरीके से काम कर रहा हूँ, जिस काम के लिए मुझे गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है, या मैं कमा रहा हूँ, या कोई प्राइवेट काम कर रहे हैं, क्या मैं वाकई में मेरिट बेस्ड काम कर रहे हैं, इस पे अगर हम ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह हमारा समाज बिल्कुल तरक्की करेगा। अदरवाइज यही जो रिश्वतखोरी है, इसको इस वक्त स्वीट पॉइजन कहा जा रहा है कि स्वीट पॉइजन के तौर पे ये हमारे समाज को खोखला कर रहे हैं। चाहे पे हो, किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो किसी भी शोबे में हो, गवर्नमेंट के एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर का फ़र्ज़ है कि चाहे वो स्टूडेंट हो, वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई भी काम करने वाला हो, अपने पोजीशन को ठीक तरह से सोच के समझ के अगर वो मेरिट बेस्ड पे काम करें, कोई भी काम उसके पास आता है, वो ये ना सोचें कि मैं इस फाइल को रुकाऊंगा तब वो एप्लीकेंट या जो काम करने वाला हो मेरे पास आए, फिर मैं उससे कुछ लूँ, फिर मैं छोड़ूँ वो काम, ऐसा ना करें, बल्कि अपने टाइम पे, अपने बारी पे जो भी काम जिस तरह से भी हो, वो काम सही तरीके से मेरिट बेस्ड अगर करें तो इंशाल्लाह ये रिश्वत का जो सिलसिला हमारे पूरे मतलब हर जगह ये फैला हुआ है, तो इसको हम कम कर सकते हैं। इसने इतना तबाही मचा दिया है, गरीब गरीब से गरीब तर बनते जा रहे हैं, अमीर अमीर से अमीर बनते जा रहे हैं। हम हर किसी पे ये फ़र्ज़ है कि सोचे, रिश्वत देने वाला, रिश्वत लेने वाला, उसमें इन्वॉल्व जो बीच में काम करने वाले, वो सब बराबर के इस पे शरीक है। तो हम सबको चाहिए कि रिश्वतखोरी ना करें। मैं ख़ासकर बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि हर किसी को अपने हिसाब से डिज़ायर रखने चाहिए। आपकी आमदनी क्या है, आप क्या काम कर रहे हो, आपके क्या डिज़ायर्स है। अगर आप ज़िंदगी में डिज़ायर्स पे ही काम करते जाएंगे तो आज आपको कुछ डिज़ायर होगा, आपकी आमदनी उतनी होगी कि आप डिज़ायर पूरा कर सकते हो तो ठीक बात है। अगर आपकी आमदनी इतनी नहीं है, मेरा तनख्वाह मेरे सीनियर डीसी साहब से कम होंगे, ऑब्वियसली एसपी साहब से मेरा तनख्वाह कम होगा, मैं इनके बराबर का बनना चाहूँगा तो मेरे तनख्वाह उतना नहीं होगा, तो मुझे गलत काम करने होंगे।
मैं अपने डिज़ायर्स को, बुरे डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए मुझे गलत काम करना होगा, रिश्वत लेना होगा, या तो हमसाये में चोरी करना होगा, या मैंने डाका डालना होगा, या रिश्वत लेना होगा। और अगर रिश्वत लें, किसी के घर से चोरी करें, मैं समझता हूँ वो चोरी करने रिश्वत चलता है प्राइवेट सेक्टर में, ठेकेदार में, बिजनेस में। कोई दुकानदार कपड़ा बेचता है, कपड़ा चोए में काटा हुआ है, ग्राहक को पता नहीं चलता है, ऐसे ही उसको मार के दे देते हैं, पैसा उतने का उतना ले जाता है, तो वो भी तो बेईमानी है, वो भी तो बेईमानी है। हम पैसा आज रिश्वत लेके दुकान में हम ढूंढते हैं, हलाल मीट कहाँ पे मिलता है, हराम का कमाई करके पैसा हराम से कमाया, जेब में उठाया, बाजार में जाते हैं हम, हलाल मीट कहाँ पे बिकता है, तो हम उसका क्या फायदा है? हमारे घर में माल मवेशी है, कोई मुर्दार हो जाता है, मर जाता है, हम उसको हाथ भी नहीं लगाते हैं, उसको बाहर फेंक देते हैं, कुत्ते को दे देते हैं। वैसे ही है, अगर सही तारीख से अगर जाने हम उसको ठीक तरह से हम देखें, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उतना ही है जैसे हम रिश्वत लेते हैं। तो ये आज के इस मौके टाइम से न जाए, मेरे पीछे कोई बंदा वहाँ पे वेट कर रहा होगा, तो वो भी तो बेईमानी है, दयानतदारी नहीं है। तो इसीलिए आज का दिन मनाया जा रहा है हर जगह, ताकि बच्चों को बताया जाए, बच्चों को आपकी ज़िंदगी, आने वाली ज़िंदगी में आपने सीखना है, आपने कोशिश करना है, इस माहौल को बदलना है। एक एक फर्क अगर हम जानेंगे कि इस दिन की क्या अहमियत है और हमारा क्या काम है, तो हम इस माशरे को, हमारे डिस्ट्रिक्ट को, हमारे लद्दाख को, पूरे इलाके को, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को हम करप्शन फ्री कर सकते हैं। ये करप्शन नासूर की तरह फैलते जा रहे हैं, इसको हमने रोकना है। खासकर जवानों पे ये फर्ज आयद होते हैं कि वो हर लम्हे, हर वक्त ये काम करें, जो भी काम कर रहा हो, कोई भी काम किसी भी पोजीशन पे हो, वो अपने दयानतदारी से अगर काम करें, तो हम इस माहौल को बदल सकते हैं, इस सोसाइटी को बदल कर सकते हैं, हम तरक्की कर सकते हैं अच्छी तरीके से। ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, आप सब लोगों का शुक्रिया। फिर एक बार मैं यूथ एक्शन कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ कि वो हर वक्त इस काम में पहल करके हमें एडमिनिस्ट्रेशन की साथ दे के ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स बनाते हैं, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इन करप्शन को ख़त्म करें। थैंक यू। Officials here and members of Youth Action Committee Kargil. Good morning to everyone. I would first like to extend my gratitude for giving me this opportunity to be here today. आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ऑब्जर्व करने के लिए। ये दिन हम ऑब्जर्व करते हैं करप्शन को फाइट करने, ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए। पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम इस दिन को ऑब्जर्व करता है, और इंडिया में भी इंडियन गवर्नमेंट नेशन वाइड प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं ये मैसेज आम आदमी तक पहुंचाने के लिए। इस साल की थीम है, जैसे पहले बताया गया है, यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी। इस साल की थीम का एम है समाज के युवाओं को इन एंटी करप्शन एक्टिविटीज का हिस्सा बनाना है। हम में से हर एक को इसी एम बनाना चाहिए कि हम हमारे युवाओं को करप्शन के बारे में और समाज में उसके इफेक्ट के बारे में जागरूक करें, और उनको ऐसे टूल से एम्पावर भी करें जिससे कि वो इसके खिलाफ एक्शन भी ले सकें। इंटरनेशनल लेवल पे एक टूल है जिसका जिक्र यहाँ पे भी हुआ है, परसीव करप्शन को नापने के लिए, जिसको बोलते हैं करप्शन इंडेक्स। 2023 में इंडिया का रैंक 93 था आउट ऑफ 180 नेशंस। ये हमारी ड्यूटी है कि हम इस परसेप्शन को इम्प्रूव करें, खासकर हमारे युवाओं के बीच में। और इस एफर्ट में देश की पुलिस का एक बड़ा रोल है, क्योंकि इंसाफ सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। करप्शन दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट स्फीयर्स में दिखता है, और उससे लड़ने के लिए हमारे पास काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद है। मैं कुछ कानूनों के बारे में जिक्र करना चाहूँगा जो कि हर एक नागरिक को पता होना चाहिए करप्शन के जुल्म से लड़ने के लिए। पहला है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2008, जिसके ऊपर यूथ एक्शन कमेटी ने भी बहुत काम किया है। एक बहुत ही हैंडी टूल है जो कि समाज में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है। जब इस टूल को एक आम नागरिक सही मकसद से इस्तेमाल करता है
तो ये बायस और करप्शन को फाइट करता है। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। एक और कानून है जो कि ना सिर्फ रिश्वत लेने को पनिश करता है बल्कि रिश्वत देने वाले को भी पनिश करता है, thereby breaking the nexus of corruption। Whistleblowers Protection Act 2014 उनको प्रोटेक्ट करता है जो अपनी संस्था में करप्शन को एक्सपोज करते हैं। इसी तरीके से लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 करप्शन से रिलेटेड ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने में मदद करता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट 1988 और ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स 2015 भी करप्शन को फाइट करने में मदद आते हैं। इसके अलावा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंटी करप्शन मेजर्स को सुपरवाइज करता है और सीबीआई हाई एंड करप्शन से डील करता है। यहाँ लद्दाख में एंटी करप्शन ब्यूरो लद्दाख पुलिस का एक विंग इन्हीं एक्ट्स को इस्तेमाल करके करप्शन से डील करता है। एक आम कारगिली के लिए जो फाइनेंशियल क्राइम की कंप्लेंट करना चाहता है उसके लिए है नॉलेज और मीन से एम्पावर करने की। थैंक यू। मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आज के इस दिन के मौजू पर अपने ज़रूरी ख्यालात से नवाजें प्लीज़। गुड मॉर्निंग टू ऑल। एसपी साहब जो आज हमारे साथ मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफिसर्स, हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, खास तौर से यूथ एक्शन कमेटी के सारे प्रेसिडेंट, सारे मेंबर्स और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबको जुले सलाम नमस्ते। पिछली बार भी हमने ये सेलिब्रेट किया था और जब मैं यहाँ नया ज्वाइन किया था कारगिल में पिछले साल, तो यूथ एक्शन कमेटी वाले जैसे सारे लोग मिलने आते ये लोग भी आए थे। तो इन्होंने अपना एम्स ऑब्जेक्टिव क्या पहले का उनका क्या वर्क रहा है, जो जैसे बताया कि हम आज किस लिए यहाँ पे मौजूद है उसके बारे में उन्होंने काफ़ी बताया। मुझे लगा कि अगर आइसोलेशन में जैसे बच्चों ने भी बताया कि हम सबकी जिम्मेदारी, सिर्फ गवर्नमेंट का या एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मेदारी नहीं है कि करप्शन को कैसे हमने ख़त्म तो नहीं कर सकते, कम कैसे कर सकते, तो हम सबकी जिम्मेदारी है। तो हमने सोचा कि हम मिलजुल के ये प्रोग्राम क्यों ना करें। नहीं तो आइसोलेशन में आप कहीं कुछ बोल के जाए, आपको भी लगेगा कि हमारी मतलब उस पर कोई गौर नहीं हो रहा है। ये चीज़ मुझे लगा कि हमें कोलैबोरेशन में इसको करना चाहिए ताकि ये डे मैं समझता हूँ हमारे लिए भी, जो हम जो गवर्नमेंट नौकरी में काम करते हो, हम खुद के लिए भी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का टाइम होता है कि जैसे एडीसी साहब ने बताया कि हम जो सैलरी लेते हैं, अगर हम शाम को जब ऑफिस से निकलते तो 5 मिनट सोचना चाहिए कि हमने आज जितने भी लोग मिलने को आए या जितनी भी फाइल्स थी हमने उसके साथ जस्टिस किया है कि नहीं। ऐसे तो नहीं हुआ कि किसी को हमने फ़ायदा देने की कोशिश की या कुछ किया। तो ये हमें एक इंट्रोस्पेक्शन, पिछले बार भी मैंने यही एक चीज़ फिर से दोहराऊंगा कि जब तक हम खुद से स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक ये बीमारी जो करप्शन का मेहनत से उसको कम नहीं कर पाएंगे। मेरा सिंपल जितना भी मेरा अभी तक 8-9 साल का नौकरी रहा है, सिंपल रूल यही रहा है कि हम खुद को समझे कि मैं कैसे बिहेवियर कर रहा हूँ, सोसाइटी में कैसे वर्क कर रहा हूँ, ऑनेस्टली कर रहा हूँ कि नहीं, कुछ कोई भी ना देखे बाकी लोग क्या बोले, खुद का आपने सोचना है कि मैं जो भी कर रहा हूँ विद जस्टिस कर रहा हूँ कि नहीं तो ऊपर वाला भी देख रहा है कि हम जो भी एक्शन सोसाइटी कुछ ना बोले बट ऊपर वाला तो हमें देख रहा है। तो ये सिंपल मेरा प्रिंसिपल हमेशा रहा है और हमें इस सिंपल प्रिंसिपल से चले तो मैं समझता हूँ कि खुद से स्टार्ट करें तो सोसाइटी में ज़रूर पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। हमने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को भी यहाँ पे बुलाया कि काफ़ी अनकम्फर्टेबल भी कभी फील करते हैं कि जब भी कोई पसंद नहीं करता कि एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कोई बोल रहा है या अगर कुछ गलत चीज़ें हैं और हम उसको मैं नहीं मानता कि सारा कुछ परफेक्ट होता है, कहीं पे भी कमी पेशी होती है। तो जब तक हम खुला दिल ना रखें, आगे वाले की बात ना सुने, तो हम कैसे उसमें चेंजेस ला सकते हैं। इसलिए मैंने पिछले साल से ये स्टार्ट किया कि यहाँ पे हम सारे मिलके इस पे इंट्रोस्पेक्शन करें। अगर आप किसी को लगता होगा कि हम कुछ बोलते हैं, सोशल मीडिया में बोलते हैं या कहीं कुछ लिखते हैं तो उस पर गौर नहीं किया जाता, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी छोटी सी छोटी कंप्लेंट हो सोशल मीडिया पे, सिंपल काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा, ट्वीट भी हो तो ज़रूर हम उस पर गौर करते हैं कि कहीं पे कुछ आपको लगता है कि कोई काम क्वालिटेटिव नहीं हो रहा है या जैसे
अभी स्टार्टिंग में एक स्पीच में बताया जाए कि कई रिक्रूटमेंट में कई कुछ नॉर्म्स का कुछ इशू है, काफ़ी लोग आते हैं, तो उसमें ज़रूर एक्शन होता है। मैं इस फोरम पे उस पर बताना भी चाहूँगा कि जैसे हमारे स्पीच में भी बताया कि एक मेंटालिटी का, जुगाड़ का जो मेंटालिटी है, मेरे पास भी लोग आते हैं कि सर कुछ कर लो, हमें जॉब चाहिए। तो हम किस मेंटालिटी में जा रहे हैं? अफसर भी रूल से चलना चाहता है, कोई नहीं चाहता कि रूल तोड़े, बट जो सोसाइटी, हमें वो खुद से भी सोचना है कि हम किस मेंटालिटी से अफसर के पास जाते हैं कि सर हमारा कुछ करवा दो, ये करवा दो। तो ये भी चीज़ हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हम किस उससे चल रहे हैं। तो जब तक हम वो नहीं सोचेंगे, जैसे बताया कि जुगाड़ की मेंटालिटी को नहीं निकालेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम सब दोनों की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट का भी जिम्मेदारी है, पब्लिक का भी जिम्मेदारी रहता है। तो कारगिल में मुझे खुशी हुई कि काफ़ी यूथ भी काफ़ी एक्टिव मैंने देखे। कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी एक्शन हो, छोटा से छोटा एक्शन पे वो अच्छा है बुरा है उस पर कमेंट होता है, सोशल मीडिया पे भी होता है, हम उसको जरूर फॉलो करते हैं। अगर हमें लगता है कि कहीं कुछ गलत हुआ है तो हम उस पर करेक्टिव मेजर्स भी लेते हैं। जैसे अभी बीच में हॉस्टल्स का इशू आया था, काफ़ी फीस क्यों बढ़ा है, ये क्यों बढ़ा है, तो उसमें कुछ इश्यूज थे जो कभी कभी हमें समझना चाहिए कि कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं कि वो मजबूरी में लेने भी पड़ते हैं, ताकि वो जो भी इंस्टीट्यूट है वो अच्छी तरीके से चले। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप जो भी आप सोशल मीडिया भी लिखे या कहीं कुछ बोले, हम जरूर उस पर गौर करते हैं और हमारी कोशिश वही रहती है कि करेक्टिव एक्शन हम ले। मैं नहीं मानता कि सारा कोई भी काम गवर्नमेंट के थ्रू होता है, कि कोई कभी हर बार परफेक्शन में नहीं हो पाता, क्योंकि हजारों काम एक साथ चल रहे होते, तो उसमें हम हर एक काम को जस्टिस और टाइम रिसोर्सेस नहीं दे पाते, तो कभी कुछ इश्यूज भी क्रॉप अप होते। बट हमारी कोशिश होती है कि अगर ऐसा कुछ इशू पब्लिक के थ्रू या जितने भी एनजीओज इसमें काम कर रहे हैं उनके थ्रू हमारे पास आए, तो हम जरूर उस पर करेक्टिव एक्शन लेते हैं। तो आज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के मौके पे आज सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि हम खुद से स्टार्ट करें, खुद का इंट्रोस्पेक्शन करें कि हम जो भी प्राइवेट सेक्टर में करें, जैसे पता है स्टूडेंट्स है यहाँ पे, ऑफिसर्स है, प्राइवेट सेक्टर में काम करने लोग, खुद से हम देखें कि हम जो भी शाम को सोते टाइम जरूर सोचना कि हमने आज कुछ भी किया वो सही किया या गलत किया, और अगर गलत किया तो उसमें हमें उसको सही करने के लिए कल से हम क्या नया तरीका निकालें। अगर यही चीज हम एक सिंपल चीज स्टार्ट करें तो मैं समझता हूँ ये करप्शन का जो मीनस है, डिसीज है, इसको कम करने में बहुत हेल्प हो जाएगी। आज हम सबको यहाँ पे बुलाया, एसपी साहब, डीसी साहब, एडीसी जो डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस अफसर है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस अफसर है। तो जितने भी कंप्लेंट्स आते हैं उसके लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि जितने भी कंप्लेंट्स है उसमें इंक्वायरीज होती है। अगर कई बार हमने देखा कि आरटीआई यहाँ पे काफी यूज होता है, बट आप सबको भी पता है कि कभी कभी उसका मिसयूज भी होता है। कई बार उसको यूज करते हैं कि किसी ऑफिसर को उसको हरास करने के लिए, कभी कभी कंप्लेंट्स में कुछ फैक्ट्स होते भी नहीं, तो इस चीज को भी हमें देखना चाहिए। तो उसके लिए कोई भी कंप्लेंट है हम उसको जरूर उस पर देखते हैं कि मेल पे भी आए तो हम देखते हैं कि उसमें फैक्ट्स क्या है, अगर सच उसमें फैक्ट्स निकलते तो उसमें जरूर एक्शन होता है। तो ऐसा नहीं कि कोई हमारी बात जो स्टूडेंट्स या किसी को भी लगता होगा कि पब्लिक को लगता है कि हम कुछ लिखते हैं तो उस पर गौर नहीं हो जाता, तो इसके लिए मैं बार बार दोहराता हूँ, उसमें जरूर गौर किया जाता है। तो फिर से मैं आप सबको बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, तो आप सबको मैं बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ। और इस डे तक हमें इसको लिमिट नहीं रखना है, डेली उसमें कुछ सिर्फ 9 दिसंबर के लिए ये एक्टिविटी नहीं रखना है, तो डेली इसको हमें, जैसे मैंने बताया कि उसमें काम करेंगे तो जरूर उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई हम देख पाएंगे। तो मुझे यहाँ पे बुलाया तो मैं यूथ एक्शन कमेटी का खास तौर से थैंक्स करना चाहूँगा कि बहुत अच्छे से उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और इसको मैं समझता हूँ इसको हर साल इसको इसी वे पे देखना चाहिए, ताकि सबके लिए एक सोचने के लिए एक मजबूर करने वाला एक दिन में ये मानता हूँ। तो थैंक यू, मुझे यहाँ पे बुलाया और कुछ अल्फाज करने के लिए मुझे मौका दिया। थैंक यू। ये जमीन पाक होगी, ये फलक गवाह होगा, भारत का हर बाशिंदा दियानत का बादशाह होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। Honorable Chief Guest, Deputy Commissioner Shri Bala Sahab, Susi Sahab,
Guest of honor, SSSP Kargil Shri Ram Raghavan sir, Additional Deputy Commissioner, District Officers, teachers, students, President, Youth Action Committee Kargil. A very good morning to all of you. Alhamdulillah, Youth Action Committee Kargil को फिर एक बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कोलैबोरेशन में इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे सेलिब्रेट करने का मौका आता हुआ। अजीजों, ये दिन हमें याद दिलाता है कि बदउनवानी यानी ये करप्शन के नासूर न सिर्फ हमारे माशरती, इक़्तिसादी और अखलाकी इक़दार को नुकसान पहुँचाया है, बल्कि ये हमारी तरक्की की राह में एक बड़ी रुकावट भी है। जैसे कि आज हमने हमारे मेहमानान अजीज से और बहुत सारे स्टूडेंट से सुनकर ये एहसास किया कि ये बदउनवानी एक ऐसी लानत है जो इंसाफ, शफाफियत और मुसाफात के उसूलों को पैमाल करती है। ये हमारे इदारों की बुनियादों को कमज़ोर करती है और आम शहरी की ज़िंदगी को मुश्किलात से दोचार करती है। आज का दिन हमें इस अज़म से ये सीखने का मौका फराहम करता है कि हम अपने ज़िंदगियों से बदउनवानी को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। आज के इस बामकसद इजलास के अख्तिताम में मैं सबसे पहले हमारे यूथ एक्शन कमेटी की जानिब से ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर श्री बाला साहब सूसे साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। विदाउट योर सपोर्ट कि ये प्रोग्राम इस बेहतरीन एटमॉस्फेयर में ऑर्गेनाइज होना शायद नामुमकिन था। जैसे कि एज यू टोल्ड कि इट्स बीन 2 years that we are celebrating this international anti-corruption day with collaboration of District Kargil. Otherwise, we were forced to celebrate this day isolatedly. So आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये आपकी करम है कि आपकी वजह से ये हमारे यूथ एक्शन कमेटी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की क़यादत में ये हो पाया। सेकेंडली, हम तहे दिल से SSP कारगिल श्री राम राघवन जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए सर और हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे सामीन को आपने अपनी बेहतरीन स्पीच से रोशनास किया। और साथ ही साथ ADC कारगिल का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने कड़कती ठंड होने के बावजूद भी, फ्रीजिंग टेम्परेचर होने के बावजूद भी आप सब यहाँ तशरीफ़ लाएँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी यहाँ पार्टिसिपेट किए। शायद कुछ स्कूलों ने मिस भी किया है, बाकी उनके सारे असातिज़ा इकराम का तहे दिल से हम यूथ एक्शन कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ 2 लाइन में अपनी ओर से करना चाहता हूँ प्लीज़। जैसे कि आप सभी को मालूम है, हमारे यूथ एक्शन कमेटी कारगिल हर साल पिछले 10 सालों से इस डे के दिन एंटी करप्शन डे ऑर्गेनाइज करते आए हैं और हर साल हमने बेस्ट परफॉर्मेंस आप सभी के खिदमत में पेश करते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर आप सभी को पता है, हमारे एज पर रिसर्च कि लास्ट ईयर वीडियो कारगिल समीना खातून केस हमने आप सभी के सामने घोषित किया था। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट तमाम ऑफिसर्स, बहुत सारे ऑफिसर्स बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत अच्छे दयानतदारी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो इसमें इस बार हमने ये पाया कि वीडियो कारगिल श्री वांगचुक, वीडियो TSG सरवर शहजाद, एग्जेंट REW फीज़ा खातून और हमारे चीफ प्लानिंग ऑफिसर अब्दुल हादी साहब की इनकी लीडरशिप ने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया कि करप्शन के अगेंस्ट हम कैसे फाइट कर सकते हैं। हम सभी के खिदमत में हमारे CPO साहब हैं, जैसे कि आप सभी ने उस दिन बजट सेशन में भी सुना होगा, देखा होगा। सर ने अपने ऐसा लीडरशिप और ऐसा एक प्लेटफॉर्म तय कर रखा है कि सर के ऑफिस से कोई ये नहीं कह सकता कि कोई सा डॉक्यूमेंट 1 वीक से ज़्यादा सर के ऑफिस में न रुके। तो ये बहुत बड़ी बात है। सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हो, जैसे कि बहुत सारे ऐसे जी हाँ सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, जिससे कि आप सभी को पता है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट्स का हो या किसी और का हो, कोई भी जब हम डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करते हैं तो उसमें एक्चुअली जो फैक्ट के अकॉर्डिंग
रूल के अकॉर्डिंग वहाँ अपने गवर्नमेंट वर्कर्स होते हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली लोगों को अपने उस डॉक्यूमेंट को आगे प्रोसेस करने के लिए चलना पड़ता है। तो इनसे हमें प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। और आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को यहाँ आने के लिए, अपने टाइम देने के लिए। एट द एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से यहाँ जितने भी वॉलंटियर्स आए हैं, हमारे यूथ एक्शन कमेटी के वॉलंटियर्स, आप सभी की जिद्दोजहद और मेहनत दिन दुगनी रात चुगनी करके इस प्रोग्राम को चार चांद लगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इंशाल्लाह अगले दिन हमें फिर से इसी तरह खुशहाल मौसम में ये दिन मनाने का अवसर मिलेगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपके लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट से नवाजा जा रहा है और यूथ एक्शन कमेटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह से सेशन हासिल करनी है शुजात अली के लिए ये नाम जो बहुत बहुत मुबारक हो। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट और आपको पेश की जा रही है जो कि हमारे मोहतरम मेहमान ज़ीम खान की जानिब से। और इस तरह से आज का जो स्कूल का जबीन फातिमा, मैं गुजारिश करना चाहूँगा डिप्टी कमिश्नर करगिल साहब आज जबीन फातिमा जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली है आज के इस कंपटीशन में। तो बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचे। अब आखिर में शुक्रिया के अल्फाज पेश करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जबीन फातिमा है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से हूँ। तो आज हम सबको पता है जैसे कि 9 दिसंबर को हम एंटी करप्शन डे मनाते हैं। सबसे पहले तो हमें एंटी करप्शन का मतलब क्या है ये पता होना चाहिए। करप्शन का मतलब एक मिसबिहेवियर है, एक ऐसी एक्टिविटी जो कि पावरफुल लोगों को और भी पावरफुल बनाती है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी जो है दो भागों में बढ़ जाती है, गरीब और अमीर। जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले इस करप्शन को रोकना होगा ताकि हमारी कंट्री जो है वो अच्छी तरीके से डेवलप हो सके। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें करप्शन का मतलब भी नहीं पता है। आज इस 9 दिसंबर एंटी करप्शन डे, इसका मकसद यही है कि इसका मकसद ये है कि लोगों को अवेयर करना कि करप्शन क्या है और इसे कैसे रोकना है। तो हमें अपनी कंट्री को डेवलप कराने के लिए इस करप्शन को रोकना होगा। जैसे कि हमें जल्दी से जल्दी, जैसे कि अगर हम देख रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है तो कुछ लोग क्या होता है वो अपने उनमें एक हेजिटेट होता है कि अगर मैं इसे एक्सपोज कर दूंगी तो फिर हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा या फिर कुछ गलत होगा। तो इसीलिए हमें इस करप्शन को रोकना होगा। थैंक यू, शुक्रिया। जी, मेरा नाम मोहम्मद तौहीद, मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में। और जो इवेंट आज हुआ ये काफ़ी सक्सेसफुल इवेंट था। इस इवेंट में बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली, बिकॉज इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज दैट देयर इज नॉट अवेयरनेस इन द पीपल कि अगर वो करप्शन के खिलाफ कुछ करना भी चाहें तो वो कुछ कर नहीं पाते क्योंकि उन्हें लॉज के बारे में पता नहीं होता है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस डे वाज दैट पीपल वर मेड अवेयर ऑफ डिफरेंट लॉज, RTI लॉ के बारे में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और लोक अदालत, लोकयुक्त लॉज, ये सब इन सब के बारे में पता चला। जब ऐसे लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जोनल लेवल पर, नेशनल लेवल पे ये चीज़ें बढ़ चढ़ के होती हैं तो हम सब में जो आम आदमी है उसे इस बारे में पता चलता है कि अगर ऐसा करप्शन का केस आपके सामने आए तो उससे किस तरह डील कर सकें। सो इस सिलसिले में इस इवेंट से बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं पहले तो मीडिया हज़रात से शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे इसमें कुछ कहने के मौका दें। तो ये पिछले हम कई सालों से ये इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मना रहा है। पहले तो हम लोग खुद तो इसको मनाते थे। ये पिछले 2 साल से एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ कोलैबोरेशन में कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। हमें ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मीडिया के हिसाब से आप सारे आवाम को कि ये रश्वतखोरी ये रश्वतखोरी हमारे लिए एक नासूर है। ये हर किसी को लड़ना है और हर आवाम को लड़ना है। ये नहीं कि हम यूथ एक्शन कमेटी ही लड़े, क्योंकि यूथ एक्शन कमेटी सब हमारी जो करगिल आवाम के लिए है, हम आवाम के लिए लड़ रहे हैं। आवाम भी हमारी सपोर्ट में रहे और जितना उनकी सपोर्ट मिले उतना हमें आगे जाने के लिए हमें सपोर्ट मिलेगा तो हम काम करने के लिए, आगे निकलने के लिए, आगे जाने के लिए भी हमें ये होता है, हिम्मत आते हैं। तो इसीलिए हम ये हर आवाम से ही कहता हूँ कि आप लोग भी ग्राउंड पे करें, कोई जो शिकायत है हमें भी बता दें, हम
हम भी आप लोगों के साथ मतलब चलने के लिए, और हम भी यही मतलब कोशिश करते रहते हैं और कोशिश बहुत सारी जगह पे किया भी है। बाकी मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, बाकी तो आप लोग खुद इसके बारे में जानकारी ही है। वस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यूथ एक्शन कमेटी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कोलैबोरेशन में आज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे आज यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल में मनाया गया। इस डे को मनाने का मकसद हम सब जानते हैं कि ये डे इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने इस दिन को एक कन्वेंशन में जो है पास किया था कि 9 दिसंबर को हर साल इंटरनेशनल एंटी करप्शन के बतौर मनाना है पूरे दुनिया में। तो हर एक मुल्क में इसको मनाया जाता है 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के तौर पर। तो करगिल में भी इस तरीके से हमने पिछले 10 साल से यूथ एक्शन कमेटी इस डे को मना रहे हैं। और इसके अलावा यूथ एक्शन कमेटी ख़ुद का यही मोटो है कि जितना हो सके करप्शन को करगिल से कम करें। और इस करप्शन को कम करने के लिए सबसे ज़रूरी तो हम समझते हैं कि आवाम का है। आवाम गलतफहमी में न रहें कि भाई कोई और आके हमें जो है यहाँ पे सपोर्ट करेगा या हमारे अगर कोई गलत कहीं पे कोई करप्शन हो रहा है तो वो मिटाएगा। कोई भी नहीं आने वाला है। आपको अपनी जगह पे खुद उठना होगा, हमें अपनी जगह पे खुद उठना होगा। यूथ एक्शन कम्युनिटी तो एक शुरुआत किया है कि भाई ये करप्शन एक मुद्दा है, इस मुद्दे पे आगे आना है हम सबको। और सबसे पहले हर किसी को इंडिविजुअली इस मुद्दे पे आगे आना चाहिए और इसके बाद हमारे सोसाइटी को सब कलेक्टिवली आगे आना चाहिए। और मैं ख़ासकर यूथ से ये तवक्को करता हूँ कि आप किसी गलतफहमी में न रहे, किसी की अफवाह में न रहे। कोई अगर ये कहे कि भाई ये लोग या कोई भी इंसान इन लोगों का यार अपना मतलब होता है, मतलब के लिए आते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ कोई सही है। और मैं समझता हूँ जो लोग अगर ऐसे कुछ गलतफहमियाँ अगर फैला रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो ये बिल्कुल जो है गलत है। आप अगर कोई इंसान आगे आ रहा है कुछ अच्छे काम करने के लिए तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और कोई अगर अच्छे काम में योगदान दे रहे हैं तो उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, न कि उसको डिस्करेज करके पीछे धकेल दें कि भाई ये फलाना है। हकीकत को जानिए, हकीकत को देखिए। अगर किसी को कोई शुबा हो तो वो खुद आके किसी भी चीज़ का कंफर्म कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि इस करप्शन को अगर हमें मिटाना है, हम सबको साथ आके मिटाना है। अगर हम कमेटी को ऑलमोस्ट कई अरसे हो गए कि करप्शन के अगेंस्ट आप लोग काम कर रहे हैं, ऐसे अचीवमेंट आप शेयर करोगे जनरल पब्लिक के साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ, बड़े मुद्दों को लेके, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं करप्शन खत्म हो रहा है, करप्शन बढ़ रहा है, तो अभी तक कितना आप कामयाब रहा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, अचीवमेंट्स थोड़ा बहुत आप शेयर। मुझे लगता है यूथ एक्शन कमेटी का सबसे प्राइमरी जो फोकस है वो है अवेयरनेस टू पब्लिक। देखिए ये जैसे कि ये सिर्फ यूथ एक्शन कमेटी का ही काम नहीं है कि वो करप्शन को जो है वो खत्म करे, नहीं यूथ एक्शन कमेटी अकेला कर सकता है। यूथ एक्शन कमेटी एक शुरुआत है, एक लाइट है जिसमें आप पब्लिक जो है साथ आके करना चाहिए। बहुत सारे हमारा प्राइमरी फोकस यूथ एक्शन कमेटी का ये रहा है कि अवेयरनेस करे लोगों को कि किस तरीके से आप करप्शन के खिलाफ फाइट कर सकते हैं। जैसे हमारे आज के कॉन्फ्रेंस में भी कहा, बहुत सारे टूल्स हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, और कोई भी काम गलत हो रहा हो तुरंत रिपोर्टिंग करना, ये सब चीज़ें जो है हम इंकरेज करते हैं लोगों को करने के लिए कि आप कहीं पे भी गलत हो तो आप कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन से इसके बारे में कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें जैसे काफ़ी काम है जिनको एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा भी है खुद यूथ एक्शन कमेटी ने, जहाँ पे भी ये हमें मौका मिला है। तो अकेला यूथ एक्शन कमेटी तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए सभी जो है लोगों को, खासकर जवानों को आगे आना होगा और एक माइंडसेट बनना होगा कि हमें जो है अपने से शुरू करके करप्शन को पूरा सोसाइटी से खत्म करना है। आरटीआई एक्टिविस्ट अभी काफी आगे आके काम कर रहे हैं, जैसे काफी चीजों पे वो काम कर रहा है विद एविडेंस के साथ। तो यूथ एक्शन कमेटी का क्या सपोर्ट रहेगा उसको? और आज के इस फंक्शन में माशा जो है आज दिखाई नहीं। बिल्कुल, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऐसे जवानों को हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। कोई भी ये हो, हमारा तो मेंबर भी जहाँ है, और मैं कहना चाहता हूँ हर जवान इस तरीके से आगे आना चाहिए जैसे हसन साहब कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं।
और हर किसी जवान को ऐसे ही आगे आना चाहिए और सबूत के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये चीज़ें रखना चाहिए, तभी जाके जो है चीज़ें जो है सामने आ जाएंगे। अगर आप सामने नहीं रखेंगे तो फिर जो है वो नहीं होगा। रही बात अगर किसी किस्म की कोई भी चीज़ जहाँ पे अगर किसी, जैसे अभी आज डीसी साहब ने भी कहा कि बहुत सारे जो है इसको मिसयूज़ करते हैं। मैं सबसे पहले एक चीज़ मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक सबसे बड़ी गलतफहमी है। एक आरटीआई एक मिसयूज़ करने के लिए एक टूल तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर किसी को अगर मिसयूज़ करना है तो आज हर जगह पे एक ये है कि आप कोई भी सिंपली काम लेके वो भी ब्लैकमेल कर सकते हैं। ऐसा है ना, मैं एक चीज़ इसमें जोड़ना चाहूँगा। अभी खालू साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि अचीवमेंट क्या है। तो अचीवमेंट, जहाँ तक मैं भी यूथ एक्शन कमेटी का 3 साल से एक मेंबर हूँ, जैसे बहुत सारे मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उसी तरह मैं भी हूँ। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एज ए रेंज ऑफिसर काम करता हूँ। तो मैं पिछले 3 साल से मतलब इनकी अवेयरनेस की वजह से ही मुझे पता चला कि करप्शन के खिलाफ जाने के लिए मतलब एक मेंबरशिप ले सकता है। तो अब अचीवमेंट का जो मसला है, अभी वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा कि उनके पास ईमेल्स के ज़रिए, आरटीआई के ज़रिए, जैसे अभी आपने भी जिक्र किया हसन माशा साहब का आरटीआई, तो ये सब उनको अवेयर होके ये चीज़ें हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। जैसे अभी अली साहब ने भी कहा कि अवेयरनेस है सब में, तो इसमें यह है अगर अचीवमेंट की ये है कि किसी को मतलब एंटी करप्शन में जेल कर दिया, ये कर दिया, तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब अचीवमेंट नहीं होने को नहीं मानेंगे हम बोलेंगे अचीवमेंट है। तो अभी एसएसपी साहब ने भी बिल्कुल की टूल्स कहा जो बहुत ही ज़रूरी है इन सब को। शायद अभी जितने भी लोग थे, अभी आप लोगों के मीडिया के थ्रू भी पूरा जाएगा, पब्लिक है ना, तो उसमें जैसे एसएसपी साहब ने कहा विसल ब्लोअर, किसी भी डिपार्टमेंट से अगर कहीं पे कुछ हो रहा हो तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ जो एक्ट है उन्होंने बताया। तो मैं एक्चुअली ठीक से सुन नहीं पाया, कुछ प्रॉब्लम था वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यूथ एक्शन कमेटी हर चीज़ को अवेयर करके, जैसे यूथ एक्शन कमेटी में बहुत सारे मतलब गाँवों से जवानों का आता है कि इस तरह हो रहा है, तो उसको मतलब वो सारा कुछ करके इसको आगे उनको कैसे आरटीआई फाइल करना है, इवन सोशल मीडिया में करना है, ये सब यहाँ से मदद हो रहा है। तो एक बड़ी अचीवमेंट मैं मानता हूँ। बाकी आप मीडिया वालों का भी बहुत मतलब हम शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने ऐसी चीज़ों को अवेयरनेस फैलाने के लिए, आप ही मीडियम है, आपके बिना ये नहीं हो पाएगा, आपसे सोशल मीडिया पे भी हो रहा है। तो ये सारे अचीवमेंट्स है वो इंशाल्लाह यूथ एक्शन कमेटी के साथ जितने भी मतलब यहाँ पे पब्लिक है, स्टूडेंट्स है, चाहे एम्प्लॉयज़ है, जुड़ा है, तो हर डिपार्टमेंट से है, तो वो हर चीज़ को मतलब मदद करके इस चीज़ को आगे करने की कोशिश कर रहा है। तो यही अचीवमेंट्स मानता हूँ मैं इनको। शुक्रिया। मैं शॉर्ट ही बताऊँगा, कोई बात नहीं। आपका एक सवाल रही, आपका एक सवाल था कि यूथ एक्शन कमेटी ने अभी तक क्या किया है। लोगों को लगता है कि यूथ एक्शन कमेटी एक ऐसी कमेटी है जो बहुत बड़े स्कैंडल पकड़े और उसको फॉलो करे और लोगों तक पहुँचाए कि हमने ये किया है। यूथ एक्शन कमेटी का इतना बड़ा ये काम सरकार का है। यूथ एक्शन कमेटी का काम है सिर्फ इन्फॉर्म करना। गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में एक ब्रिज यूथ एक्शन कमेटी का है। वो लोगों को एक इन्फॉर्म करता है कि ये चीज़ गलत हो रहा है, और ये गलत होने वाली चीज़ गवर्नमेंट को भी बता देता है, आवाम को भी बता देता है। और यूथ एक्शन कमेटी और मीडिया का ये मेन रोल होता है कि यूथ एक्शन कमेटी बता देती है मीडिया वालों को ये चीज़ हो रहा है। अब मीडिया वाले अगर आगे कर लेते हैं तो कम ठीक है। तो ये दोनों का कोलैबोरेशन है, ये ना कहें कि यूथ एक्शन कमेटी क्या कर रही है। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ अगर अभी सही है, अभी आप देख रहे हैं कि जॉब में क्या हो रहा है। हर कोई पढ़ाई कर रहा है कि कुछ बनेंगे, जब कोई कुछ बन के अभी आ रहा है उसको नहीं मिला उसका हक, तो फिर क्या है, फिर ये तो करप्शन ही तो है। मेरा मकसद ये है कि सबको अवेयर होना चाहिए कि आपका हक क्या है। अगर आप एक कतरा बूंद आपके पानी के गिलास में जाता है तो आप उसको नापा कह के गिरा देते हो, तो एक पैसा हराम का आपके हलाल कमाई में आते हैं तो वो पैसा आप क्यों नहीं गिरा देते। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि हराम और हलाल आप सिर्फ मजहबी इदारों तक रखते हो, आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में प्रैक्टिकली अमल नहीं करते हो। मेन मकसद तो यही है कि हराम और हलाल का हमें अपने किरदार में दिखना चाहिए, हमारे डेली रूटीन में दिखना चाहिए। तो यहाँ आपका इम्तिहान है कि आप कहाँ और क्या कर रहे हो। अगर आप खुश हो किसी से पैसा लेके किसी को काम दे देना और किसी को बेरोज़गार रखना, तब खुशी है, तो आपका अपना इम्तिहान लिया जाएगा, आने वाला वक्त क़यामत में लिया जाएगा, मगर आपको खुशी नहीं मिलेगी। आप देख रहे हैं, हम सबको ये देखना है कि करप्शन अगर कहीं हो रहा है तो खामोश ना रहें। बुरे लोगों के फैलने की वजह से बुराई नहीं फैलती, अच्छे लोगों के खामोश रहने से बुराई फैलती है। तो मेरा ये मकसद है, लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप खामोश ना रहें, बस बताएं
अगर आप किसी को ना बताएं, हमें बताएं, हम बताएंगे। आपको लग रहा है कि आपके आसपास में करप्शन हो रहा है, आए हमारे ऑफिस में आए, हम उसको दिखाएंगे, हम बड़े पैमाने में लेके जाएंगे, हल निकलेगा। ये ना कहें कि कुछ नहीं होगा, होगा, होता है, देर से होता है मगर सही होता है। थैंक यू वेरी मच।